एक रोल मॉडल बनाओ। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कुछ रोल मॉडल्स के। आप खुद कहो कि यस दिस इज द काइंड ऑफ पर्सनालिटी आई शुड बी एंड लुक लाइक। आपको उससे बहुत रेफरेंसेस मिलते हैं अगर वो बंदा थॉटफुल है तो। अगर आप किसी ऐसे बंदे को रोल मॉडल बनाते हो जिसका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बहुत कम है तो आपको मजा नहीं आएगा फिर उसके साथ। You will start questioning your own role model. So one person which impresses me in this modern generation is I'm thoroughly impressed by his style, his elegance, and the way he carries, and the way he delivers, and the way he talks. Is Rishi Sunak. है ना? Look at the way he walks. There is a determination, confidence, style, elegance. Always well dressed, always well groomed. You must hear him speak sometime. समझ में आ रहा है? If you see the image makeovers, if you see भोजपुरी एक्टर्स पे हम फिर से अगर वापस आए तो they are dressed according to the masses. If he dresses like a James Bond, the masses may not be able to correlate with him. Are you getting my point? क्यों गोविंदा वो चमकीली पैंटें पहनते थे और मिथुन लोग क्यों वो चमकीली फ्लैशी? बिकॉज तो उनका क्राउड था ना ये बड़े बड़े बाल, उनका क्राउड को यही पसंद था भाई। इमेज मेकओवर है। Anyways, will not divert. तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? Do not react. लाइफ में आप रिस्पॉन्ड करो। रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन में एक ही चीज का अंतर है, लॉजिकल। लॉजिक कैसे डेवलप होगा? मैंने बार बार बात की इस बारे में। लॉजिकल डेवलपमेंट कैन ओनली हैपन विद नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हाउ विल द नॉलेज कम? रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो एक तो हो गया आप एनालिटिकल रीडिंग कर रहे हैं, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, आप जियोपॉलिटिक्स समझ रहे हैं, आप पॉलिटिक्स समझ रहे हैं, पॉलिसी समझ रहे हैं। ये आपको एक तरह की लर्निंग दे रहा है, आपको एक तरह से एक मैच्योरिटी दे रहा है। परंतु उसके अलावा रीडिंग इज ऑल्सो अबाउट लाइफ। हाउ डू यू रीड अबाउट लाइफ? बाय नोइंग डिफरेंट पीपल, बाय अंडरस्टैंडिंग देयर वे ऑफ लिविंग, बाय रीडिंग बायोग्राफीज। As I was telling you about PV Narasimha Rao, if you read his book The Insider, oh, you will be मतलब amazed to know कि इतना भी कोई thoughtful leader था, but उसको credit नहीं मिला। That is a different thing. अब कल को जाके हमारा एक लीडर जाके यूएसए में बोलता है कि इंडिया में तो there is, that only shows his intellectual bankruptness. कि भाई we might be from a different political background, but as far as we are going abroad or we are talking to any third person, we are one India. Are you getting my point? तो आप जितने भी गलतियां देखोगे ना, जितनी भी गलतियां देखोगे किसी भी सिचुएशन में, मोस्टली इमोशनल ड्रिवन है। मोस्टली जैसे कि हम बात कर रहे थे, लड़की ने बोल दिया वी कांट बी। अब नाउ इफ शी हैज कम टू दैट स्टेज दैट वी कांट बी टुगेदर, it means she has gone through that phase wherein she has come to a decision that I can't continue with you. Now, if you get emotional about it, if you try to pursue her further, all that you are doing is you are ruining the memories. She's not going to come back mostly. And even if she comes back, that flair will not be there. But you are so emotionally charged, you are not able to think rationally. That is where your handling of the situation will go wrong. It does go wrong most of the time. Getting my point? तो एसआरटी मोस्टली इन्हीं चीजों में है कि क्या आप रैशनली सोच पाते हैं सिचुएशन में या आप इमोशनली कूद पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए यू आर लीडिंग अ प्लाटून ऑफ 10 men and you are surrounding a house. There is a terrorist attack in XYZ place. You are from Manipur, so let's say some insurgency has happened across Burma border. You are their leader, right? They are all hiding. You cannot say Bharat Mata ki jai and bahar. No. They will shoot you. With you, all your men also will go, right? So you don't have to go out, you have to smoke them out. So your courage is not in going out and getting the bullet. That is foolhardiness. You're making their life easier.
So how do you respond to such situation? Smoke them out. So what addition has happened? So you are emotionally charged, that's true. How come you have attacked my motherland and all? That's fine. But rationality is important. You are not alone. There are 10 men, and even if you are alone, should you leave your life? You're a trained soldier. I'm just giving different examples. Getting a point? मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होगा, आप जैसे कि मैं बात कर रहा था, आप सड़क पे चल रहे हैं, कोई बदतमीज आदमी है आपसे भिड़ गया, आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेंगे, इमोशनली चार्ज होकर उससे भिड़ जाएंगे, वो बंदा आपको अपनी लेवल पे ले जाएगा, आपको वहीं पे खत्म कर देगा। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपने उसको मारा कि उसने आपको मारा, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि यू विल फील एक्सट्रीमली बैड, बॉदर्ड, इट विल गो टू योर साइकी, इट विल डिफेक्ट यू, it will take away your 1 week 10 days, निकल जाएगा आपका ऐसे बिना मतलब। फायदा क्या हो? कुछ नहीं, वो बंदा वैसे का वैसा ही वो अगले पैसेंजर से भी यही कर रहा है। देयर इज ऑलवेज अ सिस्टम टू डू थिंग्स। आपको लगा वो बदतमीजी कर रहा है, मान लीजिए आपने ओला किया है, वो बदतमीजी कर रहा है, आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए, उसको फोटो डाल दीजिए, उसको उस तरह से प्रताड़ित कीजिए जिससे उसको ज्यादा दर्द और वो कुछ कर भी ना पाए। अगर वो जेन्युइनली रॉन्ग है तो, जैसे कि अभी रिसेंटली केस हुआ बैंगलोर में, आप लोगों ने वीडियो देखा, ऑटो वाला जो लड़की को मार रहा है, इट इज अ रिएक्शन व्हिच ही हैज गिवन। ही, लेट्स टॉक अबाउट हिम, व्हाट विल हैपन टू हिम नाउ? ओला विल डेफिनेटली डिसोन हिम, most of the aggregators will disown him, he will become infamous, he will lose probably his livelihood, his license will get withdrawn, a lot of things can happen. He got emotionally charged. In the game of life, there are certain areas where you will be on the back foot. एक समय पे ऐसा भी था कि भगवान राम भी बैकफुट पे थे भाई। There was a time when Lakshman ji was between life and death, right? होता है कि नहीं होता है? इंसान बैकफुट पे जा सकता है, बैकफुट पे जाने की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप इमोशनली ड्रिवन होके कुछ उल्टा सीधा मत कर दीजिए बस। चाहे वो रिलेशन की बात हो, चाहे आपके एजुकेशन की बात हो, चाहे आपके करियर की बात हो, आपको हैंडल करना आना चाहिए। यही है आपका रैशनल थिंकिंग। तो देखिए एसआरटी में 2-3 OLQs बहुत प्रोमिनेंटली आएंगे। एक है रैशनल थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी। आप जो भी आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो लॉजिकल होना चाहिए, यानी कि क्या नहीं होना चाहिए? इमोशनल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, योर पेरेंट्स आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, ठीक है? यू, आई विल टेक साइड विथ माई मदर एंड बीट माई फादर, ऐसा कोई लिखेगा नहीं, आई एम जस्ट सेइंग इट इज नॉट रैशनल, इट्स इमोशनल। You're biased against your father. Maybe your father is right. And moreover, whoever right is wrong, we will not talk about in a relation, but it is a mutual decision. You have to accept with maturity. Right? Getting my point? आप गलती एसआरटी में यही करते हैं मोस्टली कि आप इमोशनली ड्रिवन रिस्पॉन्सेस लिख देते हैं। अभी हम एसआरटी करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कहां कहां इमोशनल हो रहा है। वैसे इस लेक्चर के बाद होना नहीं चाहिए, बट फिर भी होगा तो वी कैन वर्क अपॉन इट, देयर इज नो इशू। बट जस्ट फॉलो दीज थिंग्स व्हिच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, यू जनरली विल नॉट मेक मिस्टेक्स, ठीक है? दूसरी चीज जो दूसरा OLQ इसमें बहुत प्रोमिनेंटली दिखेगा, वो कई जगह पे करेज का OLQ दिखेगा। कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं दोस्तों जहां पे जो भगवान कृष्ण ने कहा दुर्योधन से कि तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संदेश सुनाता हूं, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। तो कृष्ण भगवान ने बहुत कोशिश की दुर्योधन को समझाने की कि लेट्स लीव इट यार, लेट्स नॉट फाइट। After all that, he said, let's not fight. You just give them 5 villages, they will stay there, live life and go.
You keep Hastinapur also, you keep Indraprastha also. दुर्योधन को नहीं चाहिए था, दुर्योधन को झगड़ना करना ही था उसको। तब कृष्ण भगवान ने कहा याचना नहीं हरण होगा, जीवन जया कि मरण होगा। यानी कि कुछ सिचुएशन में आपको ये अब नहीं सोचना है कि जीवन होगा कि मरण होगा, आपको करना पड़ेगा वो करेज, even to the extent of death. For example, you're going with your girlfriend, coming back from a movie, and few goons started molesting her. तो अब याचना वाली स्थिति नहीं है ये, हो सकता है you might lose your life, possible. But here what reaction is expected from you is of solid courage, है कि नहीं? But you're coming back with your girlfriend after a movie, few drunk people calling her something from a distance. Now going in fighting with them doesn't make that much sense as in calling police and telling ki there. That is more logical. तब उनको पुलिस ऐसे डंडे मारेगी, जिंदगी में किसी को सीटी नहीं मारेगी। सिचुएशन के हिसाब से रिएक्शन। मेरी बात समझ रहे हो, है कि नहीं? Third thing which I want to tell you about SRT is clarity of thought. आपको बहुत क्लियर होना चाहिए माइंड में कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना सही रहेगा। जैसे कि एक सिचुएशन आ गई, यू आर गोइंग इन अ जंगल थ्रू अ साइकिल, नियरेस्ट देयर इज नो नियर बाय व्हाटएवर शॉप और पंचर रिपेयर और व्हाटएवर, योर साइकिल गॉट पंचर्ड एंड योर डेस्टिनेशन इज 10 किलोमीटर अवे, यू आर इन अ जंगल, व्हाट विल यू डू? What should you do? Keep walking. Keep walking. You're in a jungle. Now what else? Mind has to be clear, right? Are you going to wait for someone? No. Does it make sense to wait for someone? No. Since you're going to a destination, you know what is the route, so that is also not a problem. If cycle can go, you can walk. If you can walk, cycle can go along with you. Clarity of thought. है ना? सिचुएशन को देख के आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। समझ में आया? दैट इज व्हाट विल कम हियर इज रैशनल थिंकिंग। सो नो इमोशनल रिस्पॉन्स, रैशनल रिस्पॉन्स, लॉजिकल थिंकिंग, क्लैरिटी ऑफ थॉट, एंड इन सर्टेन सिचुएशंस द करेज। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, primarily that's all. You know your point? Like there is a situation, you are selected as head of the football team or captain of the football team. There is an upcoming tournament, but people, matlab teammates, are not ready to accept you. They're not happy to take you as a captain. What will you do? Rational thinking लगाओ पहले, इमोशनल नहीं होना है भाई। वो इमोशनली चार्ज है, वो आपको पसंद नहीं करते हैं, मे भी किसी और को पसंद करते हैं, तो आप क्या करेंगे? व्हाट एक्सेप्ट? व्हाट विल यू डू? एक्सेप्ट क्या? दे आर नॉट एक्सेप्टिंग यू, नो, व्हाई? हाँ, एक और चीज, मेन ऑब्जेक्टिव बंद मत कीजिए। आपको कैप्टन बनाया गया है, व्हाट इज योर मेन ऑब्जेक्टिव? यू हैव बीन मेड कैप्टन फॉर अ पर्टिकुलर टूर्नामेंट। तो आप ये मत बोलिए कि मैं अब स्टेप डाउन कर जाऊंगा, टूर्नामेंट तो आप खेलेंगे और एज अ कैप्टन ही खेलेंगे। तो कैसे करेंगे? I will convince my teammates through my leadership and leadership qualities and game plan, strategic thing. Showcase them my dad. You cannot change the situation. As he said कि I will step down, तो situation ही इसका खत्म कर नहीं, situation will remain same. Can you change the picture in TAT? The same way situation तो है वो, आप वो चेंज मत कीजिए, अब आप उसी में से रास्ता निकालिए।
समझ में आ रहा है? तो there are certain situations wherein you have to get people into confidence with your persuasiveness, with your presentation skills, with your leadership skills, strategic management. है कि नहीं? You have to apply your all the skills to make sure the team is with you. You can have a meeting, you can take the help of the coach, whatever comes to your mind. But main objective will not change. Right? Suppose you're going through a jungle again, and you see a snake which is crossing your path. What will you do? Stop. Let them go. Let the snake go. Choose a different path to what them. Yeah, if I'm traveling through the jungle, we'll make sure to not bother the route, change the route of the snake, and continue with the journey. No, snake has come in your route. So please, We are going, सामने snake आ गया, आप possibly avoid the हाँ, क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या go in the opposite direction. Yeah, will you? take a higher If you keep going in the opposite direction, will there be no snake there? It's a jungle. And what is the other route that you will take? जंगल में एक रास्ता बन जाए वही बहुत. So you'll stop, let the snake pass, and then continue. But in the same jungle, if the tiger comes, now what will you? try to run fast and Tiger. shelter. You can't run. Tiger. There is storm also. टाइगर पेड़ पे चढ़ सकता है? Not on field. चढ़ सकता है क्या? लॉयन चढ़ सकता है कि टाइगर? कोई तो चढ़ सकता है. Tiger should not lie. तो मान लो लॉयन आ गया, Then we can. चढ़ जाओ ट्री. That is not possible. Hello. If he is able to पेड़ पे चढ़ जाओ. we will not do it. Tiger can fly. Tiger can climb, but I don't think lion can climb. चढ़ जाओ. Way too early. ये छुप जाओ. Yeah, right. Don't make noise. Planning is very good. हाँ, hide yourself, cover yourself. What else? जंगल में जो शेर होता है ना, वो जू के शेर से बहुत अलग दिखता है. तो आपको जान बचानी है. ऑब्जेक्टिव क्या है? जान बचानी. वो एक मूवी है अमिताभ बच्चन की, बहुत ही बकवास मूवी. उसमें क्या होता है कि उसकी मदर उससे गुम हो गई. अब अमिताभ बच्चन की मूवीज में क्या होता है कि मदर बचपन में ही गायब. मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल मदर निरूपा रॉय गायब हो गई. अब जब बड़ा हुआ तो इसको याद आया कि मेरी माँ कहाँ है. I'm telling you, this is the actual movie scene. I may not be able to recollect the name of the movie. It might either it is मर्द or something. तो ये कह रहा है माँ, मेरी माँ से मिला दे मुझे. गाना गा रहा है किसके सामने? दुर्गा माँ के सामने. और दुर्गा माँ के सामने भी याचना नहीं, जो कृष्ण ने कहा ना कि याचना नहीं है वरनो, कोई याचना नहीं है उसकी. कोई वो नहीं है, रिक्वेस्ट का भाव है ही नहीं. डिमांड है. ही इज डिमांडिंग. आई एम अमिताभ बच्चन, आई एम डिमांड यू. वो भी किससे? माँ दुर्गा से. बताओ. कह रहे माँ, मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का खेवा मेवा खिला दे मुझे, और नहीं तो मैं कुछ कर दूंगा. तो करने में क्या करते हैं? कपूर जला लेता हाथ में. अब हाथ अब माँ भी सोचती है, दुर्गा माँ, बिकॉज वो बहुत दयालु हैं, सोचती है यार अमिताभ बच्चन बोल रहा है, क्या करें इसका. तो अमिताभ माँ क्या करती है, अपना माँ की सवारी क्या होती है? शेर, बाघ ना, बाघ को भेज देती है, जा इसकी माँ को ढूंढ के ला. इट्स अ रियल पिक्चराइज सीन. यू कैन चेक दिस सॉन्ग. ठीक है, अभी देखेंगे इस गाने को, देखेंगे कि इंडियन सिनेमा ने कैसे हमारे थॉट प्रोसेस की बजाई है थ्रू एंड थ्रू. तो उसमें एक शेर आ जा रहा है. कहाँ आ जा रहा है? निरूपा राय के पास. निरूपा राय फ्रजाइल ओल्ड लेडी, सामने एक शेर.
उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा निरूपण राय को। बट अगर रियलिटी में तुम्हारे वहां पे अगर शेर आ गया ना जिंदा, हार्ट अटैक से मर जाओगे। The ferociousness which he carries and in the mood of approaching you, बट उनको कुछ नहीं होता है। उनके आसपास कुछ अंग्रेजों के सैनिक भी होते हैं, अंग्रेज के सैनिक लड़ रहे हैं शेर से, फिर शेर उनको भगा देता है whatever, और उनका दुपट्टा पकड़ के, दुपट्टा नहीं साड़ी पकड़ के उनको लाइक अ पेट डॉग, वो जो शेर है वो लेके जा रहा है एक रास्ते की ओर। I'm telling you, this is a picture I seen. I'm not exaggerating. And then he takes her to a boat, and then she gets onto that boat. And after that, you know, the climax में क्या करता है शेर? उनको ऐसे सलाम भी करता है। Can you believe it? It's a true picturized scene. I'm just not getting the name of the movie, but that song is there. YouTube पे है, माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे। हम अभी देखेंगे, उसमें है वो। Are you getting? शेर आ गया ना, तो अगर मान लो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, पिंजरे तक ठीक है शेर, पिंजरे के बाहर अगर शेर है, चुपचाप स्टैंड स्टिल हो जाओ। वो छोड़ दे तो छोड़ दे। बट हमारी फिल्मों में कुछ ऐसी भी है, धर्मेंद्र वगैरह तो शेर से लड़ते भी हैं। कैन यू रियली? आई मीन कम ऑन, एक मार देगा शेर ना, आई थिंक वन शॉट इज एनफ। That much power it carries. Fair, we got digressed. So snake, so you will stand. Suppose that same snake, you entered a bathroom, there is a snake on the ceiling. What will you do? Will come out and call the snake to first come out, go to the bathroom. Right. Make sure Inform others and call the Rescuers. snake catcher. Correct? You entered a room, a snake is on the floor, and he is about to go and bite a small child who is sleeping on the floor. Now, will kill the snake. I will throw something to distract the snake. or something you will do, or you catch the snake and throw it, I'll put the bucket on it, means you will immobilize it. So you see how reactions are changing. What is changing in these three reactions with the same snake is the situation and your logical approach to it. In the first instance, there is no point killing a snake in the jungle. You are a stupid man if you're doing it. There are thousands of them. There is no point in killing a snake in the bathroom also. It is there on the ceiling. So if you try to kill it, there is a fair possibility it will. Bite you or try to bite you. And why to kill it? He is just out of fear come out there. Better call a snake catcher who जाके ले जाके जंगल में छोड़ देगा. Third case में, if you do not take action, it might lead to a big disaster. So what is changing is, तो आपको उसी सिचुएशन को समझना, ग्रैस्प करना और उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करना, और कुछ नहीं है। 60 में से कितने सिचुएशन करने चाहिए आप? 60। डिजाइन्ड 60 के लिए है वो। आप 60 नहीं कर रहे तो मतलब आप जो है जरूरत से ज्यादा टाइम ले रहे हो, यानी कि आप अपना इंस्टेंटेनियस रिएक्शन ना देके आप थॉटफुल रिएक्शन दे रहे हो। इट डजंट मेक एनी सेंस। एक और चीज आप कर सकते हो, आप लंबे लंबे रिस्पॉन्सेज बना रहे हो, उसका भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जितना स्पेस है उतना ही रिस्पॉन्स चाहिए उसको। इसका मतलब मोस्टली ही इज इंटरेस्टेड इन योर ओरिजिनल फर्स्ट रिस्पॉन्स। आप अपनी इमेजिनेटिव स्किल्स एसआरटी में क्यों दिखा रहे हो? आप दिखा चुके हो टीएटी में। इट इज अ वन लाइन रिस्पॉन्स। Whatever imagination, then I'll take him to the ambulance and then I'll take him to this, that you've already shown in a similar picture or a situation which was thrown to you as a TAT picture. You see an accident, what all things you'll do? That you so open in imagination. Here, if you see an accident, matlab you see while traveling on the bike, you see an accident, first thing that you should do is you go give him the first aid. That's all. Now, whether you will take him to the hospital, to trauma center, to home, to police, to falana and dimkana, that part will depend upon what is the follow-up of this first situation. Maybe just slightly injured. He's all mobile. Most of the time you'll see गिरते हैं लोग उठा देते हैं, फिर उसको थोड़ा झाड़ वाड़ देते हैं,
कंफर्ट कर देते, कोई बात नहीं, बाइक साइड में कर देते, इज ओके। थोड़ा ना उसको उठा के हर किसी को लेके चले जाएंगे एम्बुलेंस में, बट तुम तो हर किसी को एम्बुलेंस ले जाओगे। तो सेकेंड रिस्पॉन्स विल डिपेंड अपॉन द फर्स्ट रिस्पॉन्स, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर सेकेंड रिस्पॉन्स। Why? Because I've already seen. So stick to the first response. अभी हम करेंगे तो देखेंगे कि कितना सिंपल है ये, है ना। तो जीवन, जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जीवन, लाइफ इज नॉट दैट डिफिकल्ट एज वी हैव ट्राइड टू मेक इट इज सिंपल, बट कॉम्प्लिकेशन हमने कर रखी। हमने क्यों कॉम्प्लिकेट किया हुआ? बिकॉज हमको लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड ही, जैसे ये बोल रहा था ना कि सर कुछ सिचुएशन क्रिएट नहीं करूं क्या? अरे सिंपल सी पिक्चर है, बड़ा भाई छोटा भाई से मिलने आ रहा है, हो सकता है एनडीए कैडेट ऑन दैट पिक्चर आया है टर्म ब्रेक में, घर में देखा कि भाई को अंदर बंद किया हुआ, बदमाश होगा भाई, तो देखते हो खिड़की से तो बोला भैया आप आ गए, है ना। लाइफ इज सिंपल। Are you getting my point? Do not try to unnecessarily create a complication. At the same time, do not avoid a situation which is complicated. Both the things. Suppose you are traveling in a train, dacoits have attacked and they are asking for your belongings. What will you do? Cooperate with them and report the matter later. अब वो गन लेके खड़े हैं बंदे, डबल बैरल गन है उनके पास। अब आप उनसे झगड़ा करके गलती से अगर उनकी गोली चल गई, जो कि चल जाएगी, जिस बंदे में इतना गट्स है कि वो ट्रेन रोक ले और गैंग के साथ खड़ा हो जाए, पैसे मांग रहा है, आपको लगता है कि वो गोली चलाने में सोचेगा? उसको पता है गोली नहीं चलाऊंगा तो मैं जेल जाऊंगा, उसका भी तो अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। आप उससे झगड़ा करके क्या कर रहे हो? अपनी जान दे रहे हो, ठीक है दे दो, तुम्हारी जान की तुम्हें वैल्यू नहीं है तो आप अपने आपको करेजियस नहीं, आपको फूल दिखा रहे हो, बिकॉज आपकी जान की वैल्यू है। उसके अलावा जो बाकी लोग मरेंगे वो क्या? आपके करेज के चक्कर में बाकी लोग तो नहीं मरने चाहिए ना। बट एट द सेम टाइम कोई टेररिस्ट खड़ा है बॉम्ब लेके, मैं अभी दबाने वाला हूं, ये बॉम्ब उड़ने वाला। अब आप कोऑपरेशन वाली स्टेज में नहीं आ सकते हो। अब तो वही आचना नहीं अब रण होगा, आप साले को पकड़ो, उसका वो न्यूट्रलाइज करो, उसका बॉम्ब फेंको। ये डिमांड्स करता है सिचुएशन कंप्लीट करेज, है कि नहीं? बात समझ रहे हो ना मेरी? तो लॉजिक विल डिफाइन योर एसआरटी, रीजनिंग एबिलिटी, राइट? अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, क्लियर ग्रास्प ऑफ द सिचुएशन। ग्रास्प भी रीजनिंग एबिलिटी का ही पार्ट है। डू यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन और नॉट? मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड द सिचुएशन। बात ही समझ में नहीं आ रही। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी इज अ वेरी रिमार्केबल बैटल because that changed the course of the history of India. Frankly speaking, one incident which actually changed the course of the history of India was Battle of Plassey. Battle of Plassey में Lord Clive had only 3,000 soldiers and Nawab Sirajuddaula had 50,000 men, including one very strong cavalry. I'm forgetting the name of that leader. He was a Pathan. The cavalry थी solid और 50,000 सोल्जर्स थे। अब क्या हुआ? और तोपे वगैरह सब थी सिराजुद्दौला के पास, बट बारिश हो गई। बारिश का एंटिसिपेशन होना चाहिए था, बारिश का मौसम था, वो बारिश के मौसम के हिसाब से ही आया था शायद क्लाइव। अब उसका सारा गन पाउडर, ही हैड नॉट कैटर्ड फॉर द बारिश, तो उसकी जो गन्स थी सिराजुद्दौला साहब की, वो सारी जो है, वो सारा गन पाउडर सब गीला हो गया, गन सारी। इसके पास जो गन्स थी वो लाइट थी, प्लस ही हैड कैटर्ड फॉर द इवेंचुअलिटी, तो ही कवर्ड ऑल हिज गन पाउडर इन टारपोलिन और व्हाटएवर यू मे से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो इट वाज ड्राई। बट इनको लगा कि मेरी सूख गई तो इसकी भी सूख गई, उन्होंने चार्ज कर दिया,
इसने धड़ाधड़ ऐसे फायरिंग करनी शुरू की तोपों से, एंड एंटायर कैवलरी वेंट डाउन, ऑल ब्रेव मेन. So with 3,000 men, Lord Clive easily took over सिराजुद्दौला, eventually Bengal. मीर जाफर का भी रोल था उसमें, उन्होंने धोखा दिया था. धोखा क्या दिया था, वो आए ही नहीं. मतलब वो खड़े थे एक साइड में अपनी आर्मी लेके, वो आए नहीं. I think he promised him to make him the next. हाँ, and he made him. फिर उनको धोखा दिया मीर कासिम ने. तो ये चलता. कहने का मतलब ये है कि लॉजिक विल डिफाइन नॉट द नंबर. 50,000 पीपल सरेंडर टू 3,000 पीपल, एंड दैट इज व्हेन द अंग्रेज समझ में आ गया कि इनमें दिमाग नहीं है, दिमाग के पैदल नहीं ये सारे. एंड दैट्स हाउ दे रूल, है कि नहीं. चलो इसको बंद कर दो. तो अब एसआरटी अगर समझ में आ गया तो हम प्रैक्टिकल